Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the evolutionary pressures of the class Reptilia. What are the learning outcomes of this section? You are able to discuss the functions of the skin of the reptile, how the reptile skin functions or works. You are able to compare the feeding strategies of the snakes to the feeding strategies of other reptiles. You can compare the reproductive biology of the crocodile to the reproduction of other reptiles. Lifestyle of reptiles reveals striking adaptation for terrestrialism. Terrestrialism का मतलब ये है कि ज़मीन पे रहना है. अच्छा, अब जो reptiles का lifestyle है वो is adapted है according to the life on the land. Here the example is given of a lizard that belong to the desert. Deserts are the harsh areas of the southwestern United States. The common name of the lizard is the chakwala, and the scientific name is the Saromeles obesus. It survives during the late summer when the temperature exceeds 40 degrees centigrade or 104 Fahrenheit, and when arid conditions wither plants and blossoms upon which chakwala browse. अच्छा, अब ये जो लिजर्ड है ये आप देख सकते हैं कि लेट समर में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, कहाँ सा हाई टेम्परेचर है, और जब डेजर्ट में से सारी जो ग्रीनरी है या जो फूड है इस लिजर्ड की वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, वो खुश्क हो जाएगी. अब इन कंडीशंस के अंदर ये लिजर्ड सरवाइव कैसे करेगी, आपने इस चीज़ को देखना है. टू विथस्टैंड दीज हॉट एंड ड्राई कंडीशंस चकवाला डिसअपियर बिलो द ग्राउंड एंड एस्टिवेट. सो this animal survive through the process of the estivation. Estivation is the period of inactivity in hot summers. Temperature moderate during the winter but little rainfall, so the life on the desert surface is still not possible for the chakwala. When the winter starts, rainfall occurs, but it is so little as again life need water. In the summer sleep therefore merge into the विंटर स्लीप. तो जो चकवाला एस्टिवेट हुई थी गर्मियों में या उसकी जो समर स्लीप थी वो अब एंटर हो जाएगी विंटर स्लीप में. द चकवाला डज नॉट इमर्ज अंटिल मार्च. ये मार्च के महीने तक वो बाहर नहीं आएगी. In the month of the March, when excessive rainfall occurs and the desert explodes with the greenery and the flowers, the chakwala browses and drink and store water in the large reservoir under the skin. So you now you know that water reservoir of this chakwala is under the skin, and these animals emerge after the March when enough rainfall occur and the desert is filled with the greenery and the flowers. They are not easy prey. If threatened, a chakwala take refuge in the nearest rock crevice. चकवाला इजी प्रे नहीं होते. अगर इनको कहीं से कोई ख़तरा महसूस होता है, रिफ्यूज कहते हैं पनाह ले लेना. जो करीबी रॉक्स हैं उनकी जो क्रीवाइसेस हैं, दरारें हैं, उनके अंदर ये पनाह ले लेते हैं. Therefore it inflates its lung with the air. और ये क्या करेंगी, अब अपने फेफड़ों को हवा के ज़रिए फुला लेंगी, जिसकी वजह से उनकी ग्रिड चौड़ाई इंक्रीज़ हो जाती है और वो एंड वेजिंग इटसेल्फ अगेंस्ट द रॉक वॉल्स ऑफ इट्स रिफ्यूज. और अपने आप को ना जिस तरह मजबूती से चिपका नहीं लेती रॉक वॉल्स के अगेंस्ट. एक तो अब आपको ये भी पता है कि रेप्टाइल्स की जो बॉडी है उसके ऊपर हार्ड स्केल्स हैं. हार्ड स्केल्स की वजह से और दूसरा बॉडी को फुला लेना, इन्फ्लेट कर लेना, लंग में एयर जो एक्सेसिव अकामुलेट कर लेती हैं उसकी वजह से आलमोस्ट जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है ना उसकी वजह से आलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि चकवाला को आप लोग रॉक के अंदर से निकाल सकें. ये आपको ऊपर डायग्राम दिखा रहे हैं. दिस इज़ द लिजर्ड known as the chakwala.
Sauromelus species. Many reptiles like this Chakwala possess adaptation that make life apart from standing on running water possible. इनके रेप्टाइल्स के पास मोस्टली ऐसी लाइफ अडेप्टेशन हैं जिसकी वजह से ये पानी के बग़ैर या जो रनिंग या स्टैंडिंग पानी के बग़ैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसे एम्फीबियंस को लाजमी पानी चाहिए होता है ना रिप्रोडक्शन के लिए, इस तरह से इनको नहीं चाहिए होता है। Next topic is the external structure and the locomotion. Reptiles have a very hard skin. Their skin is not involved in respiratory function. While their skin is hard due to presence of a protein known as keratin. Scales or scutes may be strengthened by the bony plates and may be modified for various functions. अब इनकी बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं वो उनको स्ट्रेंथ को बोनी प्लेट्स भी स्ट्रेंथ करती हैं और वो अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल मॉडिफाई होते हैं कि ये किस किस्म के हैबिटेट में रह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग स्केल्स और स्क्यूट्स मॉडिफाई होते हैं। फॉर एग्जांपल द लार्ज बेली स्केल्स ऑफ द स्नेक प्रोवाइड कांटेक्ट विद द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग लोकोमोशन। बेली कहते हैं पेट को। स्नेक्स के जो बेली स्केल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विद द सबस्ट्रेट ड्यूरिंग लोकोमोशन, हरकत के दौरान। ऑल्दो रेप्टिलियन स्किन इज much less glandular than that of amphibians. Secretions include pheromones that function in the sex recognition and the defense. आपको रेप्टिलियन स्किन के अंदर उस तरह से ग्लैंड्स नज़र नहीं आएंगे या म्यूकस सिक्रीशंस नज़र नहीं आएंगी जैसे एम्फीबियन स्किन पे होती हैं, लेकिन जो रेप्टिलियन स्किन है ये रिलीज़ करती है फेरोमोन्स। दीज आर द स्पेसिफिक केमिकल्स इन्वॉल्व इन सेक्स रिकॉग्निशन एंड डिफेंस। Periodically reptiles shed their outermost layer or epidermal layer of the skin in a process called ecdysis. Ecdysis is important from examination point of view. Definition: periodic shedding or molting of the epidermal layer is known as ecdysis. The term ecdysis is also used for similar though unrelated process in arthropods. अच्छा, आप इसी को सेम को यूज़ करते हैं, यही टर्म एक्टाइसिस की यूज़ होती है आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी, लेकिन उनके अंदर जो है उनका एक्सोस्केलेटन होता है, उसकी शेडिंग को ये कहते हैं एक्टाइसिस। तो ना प्रोसेस डिफरेंट है। अब जो आउटरमोस्ट सेल्स होते हैं ना उन तक ब्लड सप्लाई रुक जाती है। अब जब ब्लड सप्लाई रुकेगी ऑटोमेटिकली वो सेल डेड हो जाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। मूवमेंट ऑफ लिम्फ होती है इनर और आउटर एपिडर्मल के दरमियान। जैसे ये लिक्विड पास आउट कर रहा होता है ना, लिम्फ लिक्विड है कलरलेस, तो ये लूज़ कर देगा आउटर एपिडर्मस को इनर एपिडर्मस से। एक्डाइसिस अमूमन जो है स्टार्ट होती है हेड के रीजन में, स्नेक्स और लिजर्ड्स में, और एपिडर्मस सेल्स जो हैं एक ही पीस में है। यानी ये आप लोगों ने ये सुना होगा कि स्नेक अपनी खाल पूरी उतार देता है, इसी तरह से ये लिजर्ड्स वगैरह में भी होता है। कुछ एनिमल्स के अंदर ये होता है कि जो अपनी आउटर मोस्ट लेयर है वो सिंगल पीस में उतारते हैं, जैसे स्नेक्स वगैरह के आप लोगों ने जो भी गाँव के होंगे उन्होंने तो देखा वो होगा। और कुछ एनिमल्स होते हैं वो पीसेस में उतारते हैं। इन अदर लिजर्ड्स स्मॉल पीसेस ऑफ आउटर एपिडर्मस फ्लेक ऑफ। The frequency of ecdysis varies from one species to another and it is greater in juveniles than adults. फ्रीक्वेंसी जो है ये नंबर एक्डाइसिस का वेरी करेगा स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ और ज़्यादा जुवेनाइल में होता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। द क्रोमेटोफोर्स ऑफ द रेप्टाइल्स आर प्राइमरली डर्मल इन ओरिजिन एंड फंक्शन मच लाइक दोज ऑफ एम्फीबियन। Chromatophores, these are the cells that are involved in color imparting to the skin. और ये डर्मल इन रीजन है स्किन की। अगर आप लेयर्स देखते हैं ना तो आउटर मोस्ट एपिडर्मस एंड द लेयर बीनीथ द एपिडर्मस इज नोन एज डर्मस। सो द क्रोमेटोफोर्स आर डर्मल इन ओरिजिन। इनकी वजह से क्रिप्टिक कलरेशन होगी, मिमिक्री होगी, अपॉस्मोटिक कलरेशन होगी। रेप्टाइल्स में कलर चेंज जो है ये भी सेक्स रिकॉग्निशन और थर्मल रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। मिमिक्री कहते हैं किसी को कॉपी कर लेना। पॉस्मोटिक कलरेशन में किसी भी डेंजरस एनिमल का जो पैटर्न है उसे कॉपी कर लेना कि मैं भी बहुत डेंजरस वाला कि वो एनिमल इतना डेंजरस नहीं होता। तो ये सारे फंक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं। थैंक यू। दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक।